ਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪੜਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੜਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਵ ਹੈ ਸੰਦਰਭ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪੜਾਓ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੜਾਓ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੂਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਿਆਲ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕਲਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ ਔਰ 25 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਰਾਗ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 5 ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ। ਜੇ ਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੀਏ ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੋ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਆਦਿ ਬੀੜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਅਖੀਰਲਾ ਰਾਗ ਜੈ ਜਾਵੰਤੀ।
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦਿ ਬੀਟ ਦੀ। ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਮਾਮ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ। ਤਮਸੋ ਮਾ ਜੋਤਿਰਗਮੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ? ਤੋ ਸੰਦਰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਆਪਣੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬੈਠਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਫਿਰ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਆਲਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म होना। मैं फिर अर्ज करा, ध्यान दे नाल सुनना। इल्म के जहूल से, जहूल कहते ने मूर्खता। इल्म तो मनुख कोल आया, नाल मूर्खता भी आ गई, अंकार भी आ गया। कहते ने चंगा होंदा तैनू इल्म दी मूर्खता तो मूर्ख दा इल्म होंदा कि मैं मूर्खता करदा पिया, मैं अंकार करदा पिया, इहदा इल्म होंदा। इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म होना। ये दर्श पाया हमने अपनी बसीरत से। ये अंदरों आवाज़ आई कि पुरखा अंकार नहीं करना, ये सब कुछ दात उस दाते दी है, उस करते दी है। जे वो दे सकता है तो ले भी सकता है, ले भी सकता है। इसका संदर्भ है। हुण शब्द की व्याख्या की है वो मैं आप जी के सामने रख।
प्रथम बोलखन श्री राग महला पहला गुरु नानक साहिब दा कलाम अते घर चौथा। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 17 घरां दा जिक्र कीता है। ये रागां दे घराने आउंदे ने, ये इन्हां दे कोड नंबर आउंदे ने। चौथा घराना, पंजवां घराना, पहला घराना, दूजा घराना, 17 घराना इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब विच मौजूद ने। प्रथम पंक्ति कहती है कीता कहा करे मन मान। कीता कहा करे मन मान। असीं सारे दे सारे परमात्मा की किरत हाँ, परमात्मा दे बनाए हुए हाँ। कीता पसाओ एको कवाओ। तो ये जितनी भी किरत है इहदा मालिक कौन है? करता। जितनी भी सृष्टि है इहदा मालिक कौन है? सृष्टा। जितनी भी क्रिएशन है इहदा मालिक कौन है? क्रिएटर। क्रिएटर। तो इतनी गल समझ लेना कि किरत करते तो वड्डी नहीं हो सकती। करता वड्डा है, किरत छोटी। किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई तो वो मूर्ति मूर्तिकार तो वड्डी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। किसी मुसव्वर ने तस्वीर बनाई, वो तस्वीर किसी मुसव्वर तो वड्डी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। किसी कवि ने एक पोएम लिखी है, वो पोएम कदे भी पोइट तो वड्डी नहीं हो सकती, कवि तो वड्डी नहीं हो सकती, अक्सर छोटी रहती है, छोटी। तो मनुख परमात्मा की किरत है। मनुख कदे भी परमात्मा तो वड्डा नहीं हो सकता, कदे नहीं हो सकता। कोई जितनी मर्जी कोशिश कर ले वड्डा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो गुरु नानक साहिब महाराज की कहते ने कि परमात्मा ने मनुख नूं बनाया कीता। हुण जे किधरे वो किरत कह दवे कि मैं ही हाँ सब कुछ, हंकार कर बैठे कि मैं ही हाँ सब कुछ, तो गुरु नानक साहिब महाराज कहते ने बहुत वड्डी बेवकूफ़ी है तेरी ये। कीता कहा करे मन मान। मन दे विच मान करदा है, अहंकार करदा है। ये धन मैं इकट्ठा कीता है, ये बंगला मैं बनाया है, ये कारोबार मेरे सदके चल रहा है, ये बहुत वड्डा कारखाना मेरे सदके चल रहा है, ये ट्रस्ट मेरे सदके चल रहा है, ये स्कूल मेरे करके चल रहा है। जे मैं ना होवां इसने नहीं चलना है। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल की कहते ने, ऐ पुरखा तेरे तो पहला भी लोग दावा करते सी, पर दावा करके रुखसत कर गए। जिस आसन हम बैठे कहते बैस गए। मैं हैरान हो गया अजोकी साइंस की रिसर्च पढ़ के। कहते ने जिथे आप जी बैठे हो दुनिया के किसी भी कोने ते चौकड़ा मार के बैठे हो, जितनी जगह आप जी ने घेरी हुई है इतनी जगह दे विच घट तो घट 6 के 7 लाशां दबियां होणगियां। जितनी जगह ते चौकड़ा मार के बैठे हो पूरी धरती ते, पूरी धरती ते फिर कितने को होए ते हो के चले गए, कोई अंदाजा ही नहीं है, कोई कूत ही नहीं है, कोई तखमीना ही नहीं है। तो मान क्यों करदा है? ये जो कुछ भी तेरे कोल है देवन हारे कै हथ दान। ये जो कुछ भी साडे कोल है ये सानू दान विच मिलिया है, जिहदे विच पिता दा प्यार, माँ दा प्यार, पत्नी दा प्यार, पति दा प्यार, बच्चियां दा प्यार, ये सब कुछ सानू दान विच मिलिया है।
जे मैं इस तरह अर्ज करा, आप जी ने किहड़ी कमाई की है जो आप जी नूं शरीर मिलिया है। एक छोटी जी नौकरी लैनी होवे तां भी बहुत वड्डी क्वालीफिकेशन चाहिए होंदी है। छोटी जी नौकरी भी लैनी, मैनूं याद है करीब करीब 2-3 साल पहला MCD दे विच जमादारां दी भर्ती हुई, तो उहदे विच जदों एप्लीकेशनस गईयां तो ऑफिसर्स हैरान हो गए कि PhD होल्डर भी उन्होंने भी अपलाई किया होया सी जमादार बनने वास्ते। डॉक्टरेट की डिग्री मंगिया उन्होंने 8वीं पास, पर PhD होल्डर भी उहदे विच अपलाई करते पे ने। सानू भी चाहिए क्योंकि रोजगार नहीं। खैर, जे छोटी जी नौकरी लैनी होवे ते मनुख दा काबिल होना जरूरी है। ते गुरु साहिब महाराज पुछदे ने, तेरे कोल किहड़ी काबिलियत है जो रब ने तेनों शरीर दिता? तेरे कोल किहड़ी काबिलियत है जो इन्नियां सुंदर तेनों अखां बख्शियां, तेनों हथ पैर बख्शे, तेनों माँ बाप दा प्यार बख्शिया, तेनों धियां पुत्रां दा प्यार बख्शिया, इन्ना वड्डा तेनों दान दिता, तेरे कोल की काबिलियत सी? कुछ भी नहीं। ये सब कुछ दान विच मिलिया है। धरती दान विच मिली है, ऑक्सीजन दान विच मिलिया है, पानी दान विच मिलिया है, साह लै रहे हैं, सब कुछ दान विच मिलिया है। कहते ने पुरखा तू परमात्मा दा दिता होया दान भोग रहा है, फिर तेरा भी फर्ज बनता है उहदा शुकराना कर, उहदा धन्नवाद कर। धन्नवाद। देवन हारे कै हथ दान, अगां दे बोल हन भावें दे ना दे ही सोए। हुण परमात्मा की मर्जी है, मैं नहीं देंदा, नहीं देंदा, तू कर ले जो कुछ कर सकदा तू कर ले। तो अपनी ताकत, तू अपनी ताकत का इजहार करके विखा, मैं नहीं देंदा, नहीं देंदा। इस करके मैं कई दफ़ा अर्ज करना, सिमरन करके साधना करके भी दावा ना कर बैठना कि मैं इतने पाठ जपजी साहिब दे कीते ने हुण तां मैनूं दे। मैं रोज़ बंगला साहिब आना नंगे पैरी, 20 साल हो गए ने, 50 साल हो गए ने, महाराज हुण तां दे। तो गुरु साहिब ने कहना, जे किधरे तू दावा ही करी जा रहा है तो फिर तू आ ही जा, तेरी मर्जी है, नहीं देना नहीं देना। दावा नहीं करना मैं भगती की है, मैं सिमरन किया है, नहीं। एक छोटा जिहा ख्याल आप जी के सामने रखा, गल पकड़ विच आवे। एक साधक एक शिलां ते बैठ के, चट्टान ते बैठ के और भगती करदा पिया है। कोई 20 को साल गुजरे ने भगती करदियां करदियां अन्न का त्याग किया होया ते चौकड़ा मार के दिन रात समाधि दे विच है, सिमरन दे विच है। एक दिन कहता है, ऐ खुदा, ऐ परवतगार, 20 साल हो गए ने, कोई थोड़ा वक्त नहीं है, हुण तां मेरी झोली विच पा कुछ। ते खुदा कहता है, खुदा की आवाज़ आउंदी है, पुरखा हुण तू दावा कर बैठा है, हुण दावा करदा पिया कि मैं 20 सालों तो बंदगी करदा पिया है। चंगा, जे दावा ही करदा पिया है तो फिर एक गल सुन ले, पहला तू ये दस 20 साल जिंदा किवें रहा है? महाराज ये सामने रुख है, वह फल खांदा रहा, बस फल खा खा के गुजारा किया है। परमात्मा कहता है पहला उस रुख का हिसाब किताब कर ले, क्योंकि 20 साल तेनों फल दे रहा है, पहला तू उन्होंने भी कुछ दे, वह भी हिसाब कर। 20 साल बगैर पानी दे, कहता नहीं महाराज पानी भी पींदा रहा। परमात्मा कहता है फिर पानी मेरे वालों बनाया पानी, पहला वह भी हिसाब दे। फिर जिस चट्टान ते बैठ के तू सिमरन किया है, उस चट्टान का भी हिसाब किताब कर।
और जिस धरती ते बैठ के तू बंदगी कीती है ਉਹਦਾ भी हिसाब कर। मेरी बनाई हुई हवा ऑक्सीजन पहला ਉਹਦਾ हिसाब कर, फिर मेरे तो मंगना कि मैंने 20 साल हो गए ने भगती करते करते, मैंने भी कुछ दे। फिर मेरे नाल गल करी। कहते ने साधक दे दोवें हथ जुड़ गए, नेत्र सजल हो गए। कहने लगे महाराज मैनू बख्श ले, मैं कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैनू बख्श ले। साहिब कहते ने भावें दे ना दे ही सोई, ओदी मर्जी है दवे ना दवे। पर एक गल जहने नशीन कर लेना कि एक तिल नहीं भन्ने घाले। एक तिल जितनी भी कमाई किसी की बर्बाद नहीं करता। एक बार वाहिगुरू किया उदा भी फल मिलेगा। एक बार किसी ने आम दी धुन अलापी उन्होंने भी मिलता है। एक बार किसी ने अल्लाहू अकबर किया उन्होंने भी मिलता है, उन्होंने भी मिलता है। बशर्ते कि एक बार वाहिगुरू कह के उसकी फिर संभाल करनी। किधरे ऐसा ना होवे कि वाहिगुरू भी किया तो फिर क्रोध भी करते रहे, लोभ भी करते रहे, अहंकार भी करते रहे, तो जो कुछ किया वो सब कमाई खत्म हो गई, खत्म। कीते कह कहिए क्या होए, कीते आपां सारे दे सारे परमात्मा की किरत हाँ, कीते होए हाँ, बनाए हुए हाँ। तो जिहड़ी किरत है उसकी की औखात है, कुछ भी नहीं। क्योंकि होंद तो करते दी है, किरत दी नहीं है। परमात्मा किरत नूं बना के मिटा भी सकता है, मिटा के फिर बना सकता है, उसकी मर्जी है। पर जो कुछ किया गया है उसकी अपनी कोई होंद नहीं है। वो सब कुछ प्रभु के हुक्म में चलते हैं। वो प्रभु कौन है, वो प्रभु की है, इत्थे ध्यान देना। अक्सर एक गल का झगड़ा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्योंकि एक दफ़ा एक मौलवी कहता है, ज्ञानी जी जे किधरे इजाजत होवे तो मैं एक गल कवां, गुस्सा तो नहीं करोगे? तो मैं क्या बिल्कुल गल कर सकते हो, गुस्से की गल ही गई है। आप जी ने की पूछना है दसो? कहने लगे पूछना नहीं है, मैं कुछ कहना है, कहना। चंगा की कहना चाहते हो? कहने लगे ज्ञानी जी थोड़े वाहिगुरू तो साडा खुदा बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। मैं क्या हद हो गई, हद हो गई। साडे वाहिगुरू तो थोड़ा खुदा बहुत वड्डा है। पहली गल तां तुसीं इत्थे ही गलती करते पे हो कि कोई मनुख दावा नहीं कर सकता कि खुदा मेरा ही है, तेरा नहीं है। कोई दावा नहीं कर सकता। आपन बापे नहीं किसी को भावन को हर राज। परमात्मा किसी दे प्यो का खरीदिया हुआ नहीं है। पहली गल तो यह कहना ही गलत है कि मेरा खुदा ते थोड़ा वाहिगुरू। दूजी गल यह है कि खुदा वाहिगुरू अल्लाह राम रहीम करीम दे विच कोई फर्क नहीं है, ये इको ही है। उसनों कहंदे ने सच, उसनों कहंदे ने हक। इस्लाम धर्म उसनों हक कहता है। असी गुरु नानक साहब के बोल के मुताबिक उसनों कहते हाँ आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच। हुण सच नूं मिलना है तो साहिब कहते ने आपे सच भावै तिस सच। जे सच नूं मिलना है तो झूठ का सारा लैके नहीं। जे गुणां का व्यापार करना है तो अवगुणां का सारा लैके नहीं। नहीं, जे निरंकार नूं मिलना है तो अहंकार का सहारा नहीं। जे राम नूं मिलना है तो काम का सहारा नहीं। सच नूं मिलना है तो सच का ही सहारा लेना पएगा, क्योंकि अक्सर सजाती मेल होंदा है। सच का सच नाल, झूठ का झूठ नाल। तो जदों वो सच है तो तू भी सच दी
यात्रा शुरू कर। पर हुण की करिए, हुण मनुख रोज़ गुरु दे बोल सुनदा है, रोज़ कथा सुनदा है, रोज़ कीर्तन सुनदा है, पर ये सब कुछ सुनने तो बाद फिर करदा अपने मन दी है गुस्ताखी माफ। बोल गुरु दे जरूर सुनदा है, फिर मजबूरन मैनू कहना पै जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब नूं सारे मनदे ने, पर गुरु ग्रंथ साहिब दी कोई कोई मनदा है। गुरु नानक नूं सारे मनदे ने, पर गुरु नानक दी कोई कोई मनदा है, कोई कोई। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਨੇ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਦੇ ਅੰਨੇ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਨ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਖਸਮੋਂ ਗੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਅੰਧਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਖਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅੰਧਾ ਕੱਚਾ ਕੱਚ ਨੇ ਕੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜਾਖਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਕਿਆਈ ਹੀ ਪਕਿਆਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ 4 ਜੂਨ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਐਸਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁਰਸ਼, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਅਪਾਹਿਜ ਹੈ, ਲੂਲਾ ਹੈ, ਲੰਗੜਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਸੰਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ 5 ਆਨੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀ, 1-2 ਕਾਪੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਸ ਕਛੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਜਗੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਉਹ ਲੂਲਾ, ਉਹ ਅਪਾਹਿਜ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
जेकर मैं अर्ज करा, परमात्मा दे दो रूप हैं, एक निर्गुण एक सरगुण। जे परमात्मा नूं देखना होवे किवें देखोगे? जे लाइट नूं देखना होवे किवें देखोगे? आप जी ने कहना ज्ञानी जी बल्ब जग रहा है, ये सबूत है लाइट आ रही है, ये सबूत है। जे बल्ब नहीं जगदा पिया तो कहांगे लाइट नहीं है। लाइट का सबूत देखना होवे, बल्ब जग रहा है, पखा चल रहा है। जे परमात्मा का सबूत देखना होवे, मैं बोल रहा हाँ, तुसीं सुन रहे हो, पूरी कायनात पूरी मखलूक हरकत विच है, ये परमात्मा की होंद का सबूत है। ये सबूत हुण इस प्रभु नाल जुड़ना है जो सरगुण भी है निर्गुण भी है। हुण सरगुण नाल जुड़ना होवे, किवें जुड़ोगे? तो तमाम आलमां दा कहना है कि जे निर्गुण स्वरूप नाल जुड़ना होवे तो सिमरन चाहिदा है, जे सरगुण स्वरूप नाल जुड़ना होवे तो सेवा चाहिदी है। सेवा सानू जोड़दी है समाज नाल, सिमरन सानू जोड़दा है निरंकार दे नाल। निरंकार एक मनुख कहता है ज्ञानी जी जे सिमरन ना करिए सेवा ही करते रहिए तो की गल नहीं बनेगी। मैं क्या तुहानूं 5 दिन बाद दसांगा, मैनूं 5 दिन बाद ध्यान दे नाल सुनना। इतफाक दे नाल 5वें दिन मैनूं जाना पै गया गुरुद्वारे दे बाहर, जोड़ा खाना सी, किसी अस्थान की गल है। जोड़े की सेवा करदियां करदियां दो सेवादार आपस में लड़ पए। जेड़े जोड़े उन्होंने हथ विच सी, वही जोड़े एक दूजे के सिर ते मारदे पए ने, सिर ते मारदे पे। तो मैं अर्ज की थी, तुसीं सेवा करदे हो, तुहाडे कोल सिमरन नहीं है। जे सिमरन नहीं है और सेवा है, तुहाडे अंदर झगड़ा ही पैदा होवेगा, और कुछ नहीं पैदा होवेगा। और जे किधरे तुसी सिमरन ही करते रहे, सेवा नहीं की, तो गुस्ताखी माफ, सिमरन करदियां करदियां भी हंकार पैदा हो जाता है। मैं इतना सिमरन किया, मैं इतनी बंदगी की है, मैं इतनी इबादत की है। क्योंकि अहंकार नूं थां चाहिदी है, थां बना लेंदा है। सेवा इस करके की कि निरंकार दा आसन बने, सिमरन इस करके किया निरंकार दा सिंहासन बने, पर निरंकार बैठे उस तो पहला अहंकार आके बैठ गया। मैं सिमरन किया है, मैं सेवा की है। पर भगत पूरन सिंह की जे गल करिए, आप जी इस तरह सरगुण स्वरूप की सेवा करते पे ने। मैनू बुले शाह की एक गल चेते आ गई, वो भी आप जी के सामने रखा। बुले शाह कहता है, रब ने कदे भोजन मंगिया तो रब ने भोजन नहीं दिता। रब ने कदे पानी मंगिया तो रब ने पानी नहीं दिता। रब ने कदे दवाई मंगी तो रब ने दवाई नहीं दी। तो सामने बड़ा मनुख कहता है, बुले शाह हद हो गई, रब नूं भोजन की की लोड़ है, रब नूं पानी की की लोड़ है, रब नूं दवाई की की लोड़ है। जे रब नूं भोजन की लोड़ है तो फिर वो रब रब नहीं है, रब नूं पानी की लोड़ है तो रब रब नहीं है। बुले शाह कहता है, ये जो सरगुण स्वरूप दिस रहा ये कौन है? ये कौन है? गुरु साहिब बाणी विच कहते हैं, सब में जोत जोत है सोए, तिसदे चानण सब में चानण होए। रब नहीं तो होर की है, होर की है। तो बुले शाह कहता, किसी भुखे नूं रजाया है तो 10 खां, किसी राह च रोड़े नूं हटाया है तो 10 खां, किसी जख्मी दा फट नहीं हो सीता, एवें फेरियां तस्बियां कख नहीं कीता, उत्थे अमलां ते होणगे निबेड़े, किसी ने तेरी जात पुछनी। तो भगत पूरन सिंह जी ने भोजन भी छकाया, राह च रोड़े नूं भी हटाया, और जख्मी दा फट भी सीता, प्यासे नूं जल भी छकाया, जल भी छकाया।
और एक दिन अजीब घटना घटित हुई, सानू सेध लेनी चाहिए इस घटना चो। ये अमृतसर की गल है। आप जी लंघ रहे सी ते आप जी ने वेख्या कि रुख के थले कोई मनुख सुता पिया है। ते उहदे कोल जाके कहंदे ने असीं कुछ ऐसे बच्चे जिहड़े कि लूले लंगड़े ने, अपाहिज ने, उन्हां दी सेवा करदे हां, माया दी लोड़ है। कहंदे ने उहदे कोल जो कुछ सी उसने दे दिते। करीब कोई 80 रुपए का समान सी, उसने दे दिता। मैं रोज़ उहदे कोल जांदा सी उहदा पता लैण वास्ते। एक दिन जाके देखिया तो वह रूहे जमी तो रुखसत कर गया, लम्मा पिया होया है, लम्मा पिया। मेरे मन में एक ख्याल आया कि जे किधरे मैं इधरों चला जावांगा, लावारिश बॉडी है, संभाल सरकार ने करनी, फिर एदे पल्ले जो कुछ भी होवेगा सरकार अपने कोल ही ले जाएगी। तो भगत पूरन सिंह जी अपनी आत्म कथा विच आप लिखते ने कि मैं उहदी जेब चों हथ पाया, मैनू 100 दे 12 नोट मिले। फिर मैं दोबारा एक देखिया कागज़ दे विच करीब 510 रुपए 10 दे नोट मैनू उहदे विचों भी मिले। मैं सारे दे सारे अपने कोल रख लए। ते हुण एक ख्याल आया कि ये जितने भी पैसे हैं इन्हां दे नाल यतीमां दी सेवा चंगी हो जाएगी, चंगी सेवा हो जाएगी। हुण दूजे पासे ख्याल की आंदा है, आत्मा कहती है भगत पूरन सिंह जी ये जितने भी दौलत है ये किसी दी अमानत है, ये विच तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई हक नहीं है। अंदरों आवाज़ आती है, ये उत्ते तेरा हक नहीं है, ये किसी होर दी है, तो इनू खर्च ना कर। कहने लगे कितने ही दिन वो पैसे मेरे कोल पै रहे, अखीर विच यतीमां ते भी खर्च नहीं कीते, मैं किसी होर थां ते भी खर्च नहीं कीते, पर जिहड़े लोग शहीद होए सन आज़ादी दे वेले मैं उन्हां दे बच्चियां नूं पैसे दिते ने। ते गुस्ताखी माफ, अज अस जिंदे मनुख का गला वढ़ के असीं ले आने बच्चों नूं खिलांदे हां, बच्चों नूं खिलांदे हां, लेकिन ये भुल जाते हैं जैसा अन्न वैसा मन। साडे बच्चियां दा मन फिर ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा। सिंह साहिब जी आप जी नूं रोज़ अर्ज करते हैं बच्चों नाल पंजाबी बोलो, तां करके गुरबाणी दे सिद्धांत बच्चों के दिल विच वसन। मैं एक गल जरूर कहांगा, बच्चे का जन्म होया तो असी चौके चढ़ाते हाँ, पाठ करते हाँ, अमृत बना के बच्चे नूं छकांदे हाँ, मां नूं छकांदे। बच्चे का नामकरण करना होवे, धन गुरु ग्रंथ साहिब तो नामकरण करते हैं, अरदास करते हैं। जदों दस्तारबंदी करानी होवे, बहुत वड्डा प्रोग्राम करते हैं, कीर्तन होंदा है, पाठ होंदा है, अरदास करते हैं, दस्तारबंदी की इजाजत मंगते हैं। गुस्ताखी माफ 10 साल बाद साडे बच्चे दे सिर ते ना दस्तार होंदी ना केस होंदे ने, केस भी कतल कर देंदे ने, दाड़ी भी कतल कर देंदे ने। इहदी संभाल कौन करेगा? माँ बाप। ये साडी ड्यूटी है, साडा फर्ज है, साडा फर्ज। तो धन गुरु नानक साहिब दे बोल ने, जाके रुख बिरख आराओ। रुख जड़, बिरख दरख्त, आराओ पसारा बनतर बनावट। जिस प्रभु ने ये रुख बिरख नदी नाले सागर दरिया ये जितने भी उसने बनाए ने, जे ही धावत तेहा तिन नाम। जैसा बीज वैसा रुख दा नाम। किधरे ऐसा तो नहीं देखा कि बीज तो सी अंब दा पर रुख दा नाम किकर पै गया। कदे ऐसा तो नहीं होया कि बीज तो सी किकर दा पर रुख दा नाम अंब पै गया। नहीं, जे ही धात, दात कहते ने बीज नूं, जैसा बीज है
रुख ऐसा ही है, जैसी श्रद्धा है फल वैसा ही है, जैसी श्रद्धा है। तो साहिब कहते ने फुल भाव, जे साडी भावना एक फुल है, चंगे फुल वर्गी साडी भावना है, तो कहते ने उसे तरह का फल साडी झोली विच पै जाएगा, उसे तरह का फल। और वो जिहड़ा फल साडी झोली विच पिया, जिस तरह की साडी शरधा से, जिस तरह का बीज सी, वो फल फिर सानू आप नू खाना पेगा। साहिब कहते ने आप बीज आपे ही खाए। इस पंक्ति नू मैं थोड़ा जिहा गहराई विच लै जावां, क्योंकि आप जी ने किरसानी भी पढ़ी है, किरसानी कीती है, किरसानी देखी भी है। बीज कोई बीजदा है, जे मैं इस तरह उदाहरण देवां, कणक बीजी पंजाब दे विच ते किसी होर मुल्क दा, होर शहर दा व्यापारी खरीद के लै गया। बीजी किसी ने सी, खरीद के कोई होर लै गया। आटा किसी होर ने बनाया, प्रशादे किसी होर दे घर विच बन रहे ने, खा कोई होर रहा है। तो जिसने ये फसल बीजी सी, जरूरी नहीं है वो भी खा रहा होवे, नहीं, बीजिया किसी ने, खा कोई होर रहा है। पर धार्मिक दुनिया में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। धार्मिक दुनिया दे विच साहिब कहते ने आपे बीज आपे ही खाओ। तू बीजिया है, तैनू खाना पेगा, दूजे तीजे चौथे पंजवे नू नहीं खाना पेगा, तैनू खाना पेगा, तैनू खाना पेगा। जे चंगे कर्म कीते ने फल तैनू खाना पेगा, माड़े कर्म कीते ने फल तैनू खाना पेगा। दोष ना देना किसी दूजे तीजे। तो जिन्होंने संगत नसीब हो गई, तो साहिब कहते ने फिर वो अपना जीवन बहुत ही सोहने ढंग नाल जींदे ने। नहीं तो कितने ही लोग ऐसे ने कि जी कच्ची कंध कचा विच राज, कंध भी कच्ची है, अंदर राजा भी कच्चा है। राजा क्या है? मन नू, और मन ने जिहड़ी कंध आले दुआले खड़ी की वो भी कच्ची। किहड़ी? मनुख कह देंदा है मैनू धियां पुत्रां दा आसरा है, मैनू धन दा सहारा है, मैनू अपनी जगीर दा सहारा है, मैनू अपने रुतबे दा सहारा है। पर इस मनुख नू कौन दसे ये जितने भी सारे ने, ये सारे दे सारे कच्चे ने, कच्ची दीवार है। क्योंकि रुतबा अज है कल नहीं। मैं देखिया कई प्रेमियां नू जिन्हां दे नाल 100 बंदे इकट्ठे तुरदे सी, अज अकेला ही बंदा तुरिया आ रहा है, अकेला ही। तो जे किधरे समझ होवे तो ये बहुत गहरी सट है कि कदे 100 बंदे मेरे अगे पिछे तुरदे सी, अज मैं अकेला ही हाँ। वो कच्ची कंध सी, कच्चा दीवार। तो साहिब कहते ने जे कच्ची दीवार होवे, कच्चा ही राजा मन है, फिर मत अलोणी फिक्का साथ। अलोणी जिहदे विच कोई स्वाद नहीं है। मत दे विच ईरखा है, मत दे विच गिरना है, मत विच विकार ने, कहते ने फिर उसी तरह का स्वाद आए। जे किधरे इस मत विच प्रेम होवे तो कहते ने तेन स्वाद भी उसी तरह का आएगा। मैं इस तरह अर्ज करां कि गुरु नानक साहिब तो पहला सनातन धर्म दे विच जो निरंकार का प्रचार होया, वो प्रचार का तरीका सी चर्चा करके। जे चर्चा दे विच तू हार गया, अपनियां सारियां किताबां मैनू देंगा, मैं हार गया, अपनी किताबां मैं देवांगा। फिर युग इस्लामिक दुनिया का, इस्लामिक दुनिया कहती है कौन किताबां पढ़ेगा, कौन चर्चा करेगा। बहुत सौखा कम है, तलवार चुक लवो, जे ईमान कबूल करदा है तो ठीक है, नहीं तो शिर कलम कर देने। पहली शर्त ये होंदी सी इस्लाम कबूल कर ले। पर जदों गुरु नानक की वारी आई, आप जी कहन लगे मैं चर्चा करके धर्म नहीं वधाना, मैं तलवार दे सारे धर्म नहीं वधाना, मैं प्रेम दे सारे धर्म वधाना है।
क्यों? क्योंकि साच कहूँ सुन लेओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जत्र तत्र दिशा विशा होए फैलियो अनुराग। परमात्मा है ही प्रेम, तो फिर प्रेम के नाल ही संगत नूं निरंकार नाल जोड़ो। अखीरली गल कह के मैं समाप्ति वाल आउना। नानक आने आवे रास। हे नानक, वो आप रहमत करे, आप कृपा करे, तो मेरी जीवन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਣ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਮਨੁੱਖ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਰਹੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸੁਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਲਾਈ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਲਾਓ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਹੋਂ ਤਾਂਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਵੋਂ। ਤੂੰ ਜਪੀ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਪੀ ਜਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਐਲਾਨਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਦੇਣ ਨੇ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ प्रभु की सौगात है, ये सब कुछ प्रभु की दात है। तो ये गुरु नानक साहिब का जो पावन शब्द ये अंतिका कि मनुख जो कुछ भी करता है हौमे की मोहर लगाता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जे हौमे की मोहर लगाता रहा तेरी मत अलूणी हो जाएगी, और मत अलूणी हो जाए तो फिर रसना चो निकलिया होया हर एक अल्फाज फिक्का होवेगा। फिर फिक्के नूं इत्थे भी सजा है, उत्थे भी सजा है। नानक फिक्के बोलीए, तन मन फिक्का होए। फिक्को फिक्का सदिए, फिक्के फिक्की सोए। फिक्का दर गए सटिए, दर गए मिले सजाए। सजा किस तरह की? पाउणा लए सजाए, जुत्तियां दी मार पैंदी। तो गुरु नानक साहिब महाराज रहमतां करन, नाम दी दात, सिੱਖੀ सिदक आप जी का ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੁ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ।